یا رسول خدا قلب ناشاد ہے چین برباد ہے ہو کرم سیدہ یا رسول خدا. میرا نام شاکر حسین اتاری ہے. یہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام محمد علی ہے. یہ پیدائشی جو نا اسی طریقے سے اسپیشل چائلڈ نا. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب یہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو چھیڑتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, یہ بدتمیزی کرتا ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھے جو ہے جب لوگ چھیڑتے ہیں اس کو تو مجھے غصہ آتا ہے, لیکن ہم کس کس کو روکیں گے. یہ تو معاشرے کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا بچہ ہے, اس کو پیار محبت سے ڈیل کیا جائے. دل کی خواہش پوری ہو گئی, دل میں تھی باپا سے ملاقات کی تمنا تھی. انشاءاللہ باپا کی نظر کرم ہو جائے گی, دم کروائیں گے تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. باپا سے ملو گے, باپا کا ہاتھ چومو گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو اکیلا آنے دینا کوئی ترکیب سے. نہیں چاہیے. نام کیا ہے؟ آیا محمد علی. محمد علی, محمد علی آجا بیٹا. آ جاؤ آ جاؤ. نوین کا اچھا میرے باپا ہاتھ ملائے گا نا باپا. ارے محمد علی, محمد علی کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ ہمارے یہ محمد علی ہیں بچے, اور جو ابھی آپ دیکھیں گے شاید وہ یہ آتے آتے پھر دوبارہ آپ نکل گئے. یہ ان کے والد صاحب ہیں, انشاءاللہ ان کے والد صاحب سے بھی بات چیت کریں گے. لیکن اب یہ ناراض ہو کر چلے گئے محمد علی بھائی. اب ان کو منع کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ. کیسے آئیں گے محمد علی بھائی؟ میں لے کر ہیں, مجھے آنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی. نہیں میں لے کے انشاءاللہ. اٹھا کر آئیں گے؟ نہیں. یہ ہے آزمائشیں ہیں والدین کے لیے, بڑی آزمائشیں یقین مانیں. آجا اللہ تعالیٰ خیر تو اچھا بچہ فرمائے. اور آپ یہ سلسلہ جو ملاحظہ کر رہے ہیں, ہم کوشش ہے ہماری کہ اس طرح ہمدردیاں کا ایک جذبہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے دلوں میں بھی پیدا ہو, اور پتہ چلے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ غمزدہ ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, اور ہمارے غم ہمارے دکھ اتنے کم ہیں. یہی لگے محمد علی کو لے کر آئے. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ رسپانس نہیں کریں, آپ ان کو طرف توجہ نہیں کریں. بھائی کیوں نہیں آنے دیں, لے جائیں. چلے بھائی لے جائیں ان کو. یہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کو رسپانس نہیں کرے تو یہ منع کرے. ارے 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 میں ساتھ ہوں نا. اچھا آپ ساتھ رہے. چلو چلو ابو ساتھ ہے, ابو ساتھ ہے, ابو ساتھ ہے, ابو ساتھ ہے. محمد علی بیٹا ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ بابا نہیں بیٹا. ہاں میرے ساتھ. اچھا ہاں موبائل دے رہے ہاں. آپ کا نام پرابلم شاکر حسین. شاکر حسین. ارے دوبارہ چلے گا. محمد علی دم کرا لے, چلے خالی دم کرا لے. اچھا مجھے دم کرا. ذرا دیکھیں کتنی گھر میں آزمائش ہوتی ہوگی ان کے لیے, ہیں بابا؟ کتنی آزمائش ہوتی ہوگی. ہاں. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے, کیوں ناراض ہو رہے؟ عمر کتنی ہے ان کی؟ 11 سال کی عمر ہے. محمد علی میرا خالی یہ طرح گھبرا گیا. ابھی ہو گیا ایسے, نہیں تو ٹی وی گھر میں کوئی کرتے رہتے ہیں اس طرح؟ نہیں کبھی کرتا ہے. کبھی کبھی وہ بھی کوئی اگر کوئی باہر چھیڑتا ہے تو گھر پہ اگر باہر کوئی چھیڑتا ہے اس کو تب اس سے ہوتا ہے. اچھا یہ کب سے ہے پرابلم؟ یہ تو بچپن سے پیدائشی ایسا ہی ہے. اللہ اللہ اللہ. جدا بھی اونڈا سے آتی ہے. بڑی آزمائش ہے. بچپن سے ہے یہ پیدائشی ایسے ہی ہے.
बस ये कि ऐसे बच्चों को फिर संभालते संभालते ये तो होता है कि आदमी आदी हो जाता है। शुरू में सदमा ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कमी आ जाती है। लेकिन बहरहाल एक है तो मतलब सदमे की बात, परेशानी की बात। अल्लाह बेसिकली क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली समझ बूझ इतनी ज़्यादा नहीं है इसको ना, बस समझ तो लेता है लेकिन अपनी वो बता नहीं पाता ना। रेगुलर एक जो बच्चा बात करता है ना उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। जी हाँ। सर भी थोड़ा इसका छोटा लग रहा है, नॉर्मल। जी हाँ, छोटा है सर। नशो नुमा में है। जी हाँ। ग्रोथ रहती नहीं अब मत्थे की जरूरत नहीं, वो भेजो जो दिमाग की 12 साल उम्र बताया। मुतासिर है। जी हाँ, 11 तकरीबन 12 साल। अल्लाह खैर फरमाए। बस आजमाइश। परेशानी बड़ी है तो अजर भी बड़ा है, सब्र कीजिएगा। हदीस पाक में जिस मोमिन को कोई कांटा चुभता है या कोई बड़ी परेशानी लायक होती है, अल्लाह पाक इसकी वजह से उसके गुनाहों में कमी फरमा देता है। यह है कि परेशानियां जो हैं ये हमारे गुनाहों का कफारा बनती हैं और दराजात की तरक्की का बाज़ों का सबब बनती है और नेकियां बढ़ती हैं इससे। आपकी बारगाह तक लेकर आ गया और मुझे क्या चाहिए? कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद। अच्छा, जमजम नगर से। रास्ते में तो ये चलते रहे। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, बस कभी कभी ऐसा जी हाँ। बस वो ये सबको देख ले उसमें ये घबरा सबको देख कर भी हो सकता है। हाँ शायद ऐसा ही हुआ। और बच्चे? एक बेटी थी इससे बड़ी ना, उसका इंतकाल हो गया। वो भी इसी तरह करते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके बाद के जो 2 बच्चे हैं ना वो सही है बिल्कुल, माशाल्लाह। ये अब एक है कि और बच्चे जैसे कह रहे हैं उनको अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से महफूज रखा है, तो एक लम्हा शुक्र है। बेशक सारे बच्चे ऐसे नहीं है। सारे बच्चे ऐसे होते तो बेचारे क्या करते, बाजों के होते हैं, सारे बच्चे से। अल्लाह करीम रहमत की नजर फरमाए, आप सबको सब्र अता फरमाए, अजर अता फरमाए। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में हाजिरी इंशाअल्लाह। तरकीब फरमाते रहिए। मदनी काफिलों में सफर करके रिज़ा इलाही के लिए उनके लिए दुआ भी करते रहे। इंशाअल्लाह। मुसलमान के लिए कितना इसमें एक वो है कि जब ये इस पर कोई मुसीबत आती है तो सब्र करके अजर कमाता है, और जब उसे नेमत मिलती है तो शुक्र करके अजर कमाता है। दोनों हाथों में गोया कि उसके लड्डू हुआ करते हैं मोमिन के लिए। और देखिए इस तरह के परेशानियां जो है ना गैर मुस्लिमों के यहाँ भी औलादों को मिली हुई होती हैं, लेकिन गैर मुस्लिम को सवाब नहीं मिलता। गैर मुस्लिम को इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। मुसलमान को जब कोई परेशानी मुसीबत आती है तो उसके लिए एक ज़बरदस्त तसल्ली है, एक ज़बरदस्त उसके लिए एक धारस है कि मैं अपनी औलाद या अपने माल या अपनी जान के हवाले से जिस परेशानी में मुब्तला हूँ, मुझे इसमें मतलब सब्र करूँगा तो मुझे अजर मिलेगा, मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगा। हमारे डॉक्टर ज़ीरक हैं, माहिर नफ्सियात हैं यूके लेस्टर में, आप इनको मदनी चैनल पर देखते होंगे। और भाई ये बताते हैं कि मैं इनके पास नफ्सियाती तौर पर जो मरीज़ आते हैं तो इनके अंदर काफ़ी एहसास कमतरी होता है और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो उन्होंने आपके पर्चे रखे हैं फ़ज़ाइल आफ़ात, इन्होंने अपने पास क्लिनिक में रखे हैं। और ये मुझे खुद बताते हैं कि ये जो थेरेपी होती है ना, कोई मतलब कि गुफ्तगू के ज़रिए सही करता है, तो ये जो मायूसी के साथ बाद मरीज़ आते हैं ना कि उनको मतलब कोई उम्मीद नहीं रहती, तो ये हमें बताते थे कि मैं इन्हें अमीरुल सुन्नत का ये पर्चा देता हूँ। ये पर्चा इनके लिए असलन दवा का काम करता है। और जब ये पढ़ते हैं तो इनको जैसे इनको जो मुसीबत या परेशानी आई हुई है, और जब ये उस परेशानी और मुसीबत पर मिलने वाले सवाब को पढ़ते हैं तो एक उम्मीद और एक अच्छी से अच्छी जैसे इनकी ज़िंदगी में जैसे कि रमक चमक वाला निज़ाम हो जाता है। तो लोग दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपी करते हैं, इलाज का कोई ना कोई ज़रिया है। तो इस तरह के मुसलमान जो दुखी है ना, उसके लिए जैसे अमीर सुन्नत ने रिवायत भी बयान की, बड़ी ज़बरदस्त धारस है कि उसको सवाब मिलता है जबकि वो सब्र करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह आपको सब्र अता करे, अल्लाह आपको हिम्मत अता करे और अजर व सवाब से महरूम भी ना फरमाए।
अच्छा ये मोहम्मद अली के लिए तोहफा। मिल्कियत इन्हीं की है ना। जी हाँ, अब भाई ये इरशाद फरमाएं कि जिस तरह आपने ये भी बच्चे को देखा 12 तकरीबन 12 साल की उम्र होने वाले, इस तरह की जो मतलब कि लुक वाइज दिखने के साथ जो होते हैं, इनको नॉर्मली इलाके महल्ले में लोग तंग करते हैं, मैं अगर गलती नहीं, सही। इनको लोग तंग कर, यानी यूँ समझे कि आम आदमी के लिए इनके लिए ये खिलौने का काम करता है, और इसको खेलेंगे तो ये इसके पीछे भागेगा, उसके पीछे भागेगा। तो जो लोग इस तरह के बच्चे या बड़े जो भी हों इनको तंग करते हैं, उनके लिए कोई नसीहत के ज़ाहिर है कि अगर हम ऐसे बच्चे को देखकर इनके वालिदैन के सामने मुस्कुराएंगे ना, तब भी माँ बाप के दिल को ठेस लगेगी। हंसेंगे तो इनको झटके आएंगे, यार हम इसी मुसीबत में पड़े, हाँ, ये अगर 1 घंटा इसको संभालें तो पता चले ये कैसे संभलता, और इनको हंसी आ रही है, मुस्कुरा रहे। तो ये वाकई मकाम गौर है कि मौके की मुनासबत से बंदा मुस्कुराए और हंसे, या इस तरह की जुमले बोलते हुए भी मोहतात रहे कि हमारा कोई भी जुमला इनके दुखे हुए दिल को मजीद दुखा सकता है। इसलिए जख्मों पर मरहम रखना सीखना चाहिए, न कि मजीद जख्मों पर नमक का छिड़काव हम करें। अल्लाह करीम तौफीक दे तो ऐसे बच्चों को छेड़ कर, उस बच्चे को तो शायद पता नहीं चलेगा, छेड़ने से उनके माँ बाप को बड़ा दुख होता होगा, भाई बहनों को भी बड़ा सदमा पहुंचता होगा इससे, तो ऐसा ना किया जाए। और अगर वो बच्चा भी समझता है तो ज़रा उसको भी इसका सदमा पहुंचेगा। तो ये सब गुनाह के काम है, इनको छेड़ना, इस तरह की इनकी दिल आज़ारी होती हो या इनके ख़ानदान की दिल आज़ारी हो तो ऐसा ना किया जाए, हरगिज़ ना किया जाए। इससे बचना होगा, तौबा भी करनी होगी अगर किसी ने ऐसा किया है तो। और जिन जिन का दिल दुखा इससे, अगर वो आकिल हैं, बालिग हैं, तो उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी। और जो नासमझ है तो अगर वो जब समझदार हो जाए तब माफ़ी मांगनी होगी। कि जो यानी कि जैसे नाबालिग बच्चा तो वो माफ़ करेगा तब भी माफ़ तो होगा नहीं, अब यही है कि उसका इंतज़ार किया जाएगा ये बालिग हो जाए तब वो माफ़ करेगा, तो माफ़ हो जाएगा। ये बड़ा नाजुक मामला है। इसी तरह एब नॉर्मल को इस तरह सताने से, कि नाबालिग तो चलो बालिग हो जाता है, एब नॉर्मल का तो पता ही नहीं चलता कि ये कब मतलब नॉर्मल हो और माफ़ करने के काबिल हो जाए। इसलिए बहरहाल ये कि माँ बाप को भी चाहिए कि ऐसी औलाद पर गुस्सा करते वक्त गौर कर लें कि ये गुस्सा करने का मकाम है, इसको मारपीट करने का ये मौका है। जैसे कि कोई किसी के दरवाजे पर नोक करे, दस्तक दे और दरवाज़ा ना खुले, वो कोई दरवाजे को गालियाँ दे या लाते मारे, ज़ाहिर है कि अक्लमंदी तो नहीं है। तो दरवाज़ा तो दरवाज़ा, इसको मारने पीटने से कुछ हासिल नहीं होना। तो इसी तरह इस तरह के जो एब नॉर्मल बच्चे या बड़े होते हैं, इन पर ज्यादती करना, मारपीट करना, इनको झाड़ झपट करना, ये भी मतलब इसी से मिलता जुलता काम है। इसलिए मतलब माँ बाप को चाहिए कि शफकत का बहाव उस पर रखें, तो इंशाल्लाह इस शफकत से काबू आ जाएगा। जानवर को भी प्यार देते तो काबू आ ही जाता है ना। बिल्ली को आप प्यार दें तो वो कमान की तरह टेढ़ी होकर आपके कदमों से रगड़ खाएगी, और अगर आप शिश करें तो भाग जाएगी। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए, अल्लाह खैर फरमाए। चलें, दुआएं भी मिल गई हो माशाल्लाह। और दुआओं की खुसूस दरखास्त है इस्तेमाल किया करें इंशाअल्लाह। मदनी काफिलों में सफर इत्तिकाफ की तरतीब हो जाए तो वो तोहफा दे दें, कुछ नहीं तो आखिरी अशरे का इत्तिकाफ हो जाएगा। आपके यहाँ तो माशाल्लाह इत्तिकाफ की बाहर है, जमजम नगर में तो बड़ा मदनी काम है। शायद मैं दानिश भाई इंशाल्लाह होता है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ईद के बाद 1 माह का मदनी काफिला, मदनी काफिले में सफर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रातों को जाया करें, कुछ ना कुछ मुतकफिन की खिदमत किया करें, उनकी सोबत इख्तियार करें, इसकी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखने की मदनी बहार है इनकी। वाह, ख्वाब में आए थे तो दाढ़ी रखने की जो ना अभी लहसुन ख्वाब में आया था, तो उस वक्त से जो ना फिर कटवाई नहीं मैंने। माशाअल्लाह, इमामे के लिए भी ख्वाब में आकर कहना पड़ेगा। वो ये वैसे तजुर्बे, ये आपको भी हुआ होगा,
ख्वाब में बहुत सारे काम हो जाते जो बिल्कुल ख्वाब में बोलो तो पत्थर ही लगी। वो सब उतनी माशाअल्लाह, चलो अच्छा ही काम हुआ है। ख्वाब में ऐसा लगता है कि मेरा ख्याल है इससे ज्यादा तन्हाई इंसान को ना मिलेगी कि वो है और आप हैं। नहीं, रश भी नहीं होता होगा ना आजू बाजू। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा की बारगाह में मैं गया, मेरा बेटा जो है हाइपर रश देख के बैठ नहीं सका बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ गया बापा की बारगाह में। ये मेरा बेटा ही है जो बापा तक मुझे उसने पहुँचाया। बापा से मिल के कभी तस्वुर ही नहीं किया था ऐसी मुलाकात होगी। बापा ने मदनी फूल अता किए हैं। इंशाल्लाह इनकी दुआओं से जो है मेरा बेटा भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा।